Okay, students, welcome back again. And today we will discuss about area of a triangle. If you know the vertex of a triangle, okay, coordinate of the vertex of a triangle. तो कैसे हम उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करें अगर आपको वर्टेक्स पता है किसी ट्रायंगल के. So now we will start area of a triangle. So basically, if I discuss about the area of a triangle, so the general formula of area of triangle is your 1 by 2 base into height. Any triangle, if you know the base and if you know the altitude, then you can easily find out the area of a triangle. 1 by 2 base into height. So area of a triangle, any triangle, if you know the base and know the altitude A, B and C, then that will be base into height, or we can say altitude. So 1 by 2, if I consider this triangle, so that will be AB multiply CM. CM is the height and AB is the base. So we can easily find out. Now, if I talk about coordinates, suppose this is your triangle A, B, and C. Okay. And you have to find out the area of this triangle. Then how to find out? Suppose this is your x1, y1. This is your x2, y2, and this is your x3, y3. Okay, so how to find out the area of this triangle? So if I write the direct formula of area of triangle, that will be your area. I am representing here this one. This is your area of triangle, this symbol, and formula will be 1 by 2 x1. Just consider first x1, y2 minus y3, okay, plus x2, y3 minus y1 plus x3 y1 माइनस y. फॉर्मूला लगेगा कि बहुत बड़ा है, बट लर्न करने का सबसे इजी क्या है वो देखिए. अगर मैं y की बात करूं तो ब्रैकेट के अंदर जो है, यहाँ देखिए, वन वन मैंने चूज किया x का. ओके, और वन के बाद टू थ्री किसका है, y. ओके, अब साइकिल रोटेट होगी. वन के बाद आएगा टू, अब यहाँ थ्री के बाद यहाँ से थ्री उठ करके यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा वन. इट मीन्स वन टू थ्री वन, और वन कहाँ पर जाएगा. नाउ टू थ्री वन, ओके, टू थ्री वन, देन थ्री, देन थ्री वन एंड टू, थ्री वन टू. ओके, so you can see two is here, three is here, okay, and three is here, one is here. Okay, so you can easily understand the formula. 1 2 3 3 2 1, sorry, 2 3 1 and 3 1 2. Okay, so 1 x1, y2 minus y3, x2, y3 minus y1, and x3, y1 minus y2. Okay, so this is your area of triangle formula. Okay, आया कैसे ये फॉर्मूला, अब हम आपको बताते हैं. यहाँ देखो, अगर ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ये आपका क्या है, ट्रायंगल है. बनाते हैं हम थोड़ा सा ऐसा. ओके, so this is your triangle. So this is your A point, this is your B point, this is your C point. Wait, wait. Okay, now, so, sorry. Now you can see
this is your triangle, this is your x-axis, this is your y-axis. So A point, B point, and C point. Okay, A is your x1, y1, B is your x2, y2, and C is your x3, y3. Okay, so now you can see here, okay, this. You have three altitudes here. One is Q, P, and R, right? So now you can see area of triangle. How to find out? Area of triangle ABC means now you can see A, B, Q, R, C. तो मेन चीज आपके पास एक ट्रेपेजियम है. ओके, ए बी क्यू पी. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी क्यू पी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी आर सी. और एक और ट्रेपेजियम है, उसको हम माइनस कर देंगे इसको. तो ये है एरिया ऑफ माइनस ट्रेपेजियम बी क्यू आर सी. ओके, तो जब मैं इन तीनों का एरिया में फाइंड आउट करूंगा और माइनस करूंगा तो मुझे ट्रायंगल का एरिया मिलेगा. कैसे? देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रेपेजियम ए बी क्यू पी वो क्या होता है? 1/2 sum of parallel side. Sum of parallel side means AB QP means 1/2 BQ and AP are parallel. Multiply and distance, that will be your QP, and we know that Q and P. Q is your x2 point and this is your x1, this is your x3. Okay, so BQ plus AP and BQ plus AP, that will be your, अगर मैं इधर से इसका पॉइंट अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ यहाँ पर, that will be your y2, that will be your y1, that will be your y3. So 1/2 y1 y2 plus y1 into x1 minus x2. Same 1/2 area of triangle APRC, that will be your y1 plus y2 into x3 minus x1. Now minus 1/2 y2 plus y3 into x3 minus x2. और जब मैं इस सारी इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, ओके, तो दैट विल बिकम इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास मिलेगा, मैं ये इसके लिए है और ये इसके लिए है. मीन्स अगर मैं बी क्यू आर सी की बात करूं और इसके लिए बात करूं तो ये हो जाता है 1/2 ए पी आर सी में ए पी आर सी. तो 1/2 ए पी प्लस आर सी मल्टीप्लाई पी आर. और इसकी बात करें तो 1/2 y2 plus y3. y2 means bq plus rc into qr. Okay, so this is very complex proof and आप लोग समझ सकते हैं इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा. यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस फॉर्म. सो वी विल नॉट गो डीपली बिकॉज शायद आप लोग घबरा जाएं ये सारा कुछ देख करके. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ओके, ना और अगर जिसको सॉल्व करना है तो इन तीनों को ओपन करो और कुछ काटो पीटो तो आपको पता चलेगा कि आपको यही मिलेगा. ठीक है, करने की कोशिश करना. अगर समझना है देन यू कैन आस्क मी. नाउ इस अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. तो वी विल टेक द एग्जांपल 1. एग्जांपल 1 मींस आपसे पूछा जाएगा
कि आपको ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन होंगे, आपसे एरिया पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertex are 1 minus 1, 4 minus 4 6 and minus 3 minus 5, right? तो आपके पास वर्टेक्स हैं, दिस इज योर ट्रायंगल A, B and C. So 1 minus 1 minus 4 6 and minus 3 minus 5, that is your x1 y1, that will be your x2 y2, that will be your x3 y3. Okay, ध्यान से सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू द वर्टेक्स x1 x2 और x3 या लिख लो एक जगह, क्या है 1 minus 4 and minus 3 and y1 y2 y3 यहाँ लिख लो। कैलकुलेशन में ध्यान देना है इसमें, -1 6 एंड -5। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 1/2 x1 2 minus 3 y2 minus y3 plus 2, it means x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Okay, so now put the values here. 1/2 x1 is 1, y2 minus y3, so 6 minus -5 plus x2, that will be a -5, y3 minus y1 -5 minus -1, okay, plus x3 -3, y1 minus y2, so -1 minus 6. Okay, so now you will get x2 1 into 11, with minus minus plus, so 6 plus 5 11 plus minus, we will get -4 and -5 plus 1, that will be your -4 plus, that is also -3 and into -7. Now you will get 1/2 11 -4 into -4 plus 16 plus 21, that will be 11 plus 16 27 plus 21, that will be 48, divided by 2, that will be 24 units. Okay, this is your answer, the area of this triangle. Okay, so आपको अगर coordinate पता है, then you can easily find out. Example number 2 of the NCERT, same, you can do yourself. And example number 13, find the area of a triangle formed by the points, that is also same, there is no need. And if one thing more I want to tell you, if anybody ask about कि आपके पास 3 पॉइंट हैं A, B and C, they are collinear or not? They are collinear or not? कोलिनियर अगर पॉइंट होते हैं तो वो एक लाइन में होते हैं, सपोज ये पॉइंट है एक लाइन में है, तो वो पॉइंट कभी भी आपका ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते हैं। ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते हैं मीन्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कोलिनियर पॉइंट्स शुड बी 0। अगर आपके पास 3 पॉइंट हैं, अगर उस ट्रायंगल का एरिया अगर आपका 0 आता है, देन दोज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, वो पॉइंट हमारे कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। तो जो पहली एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, तो बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स A 2 3 B 4K and C 6 minus 3 are कोलिनियर। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर पॉइंट कोलिनियर होंगे तो एरिया का ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, 0। ओके, so now you have 3 points A, x1 y1 2 3 and B, x2
y2 4k and c x3 y3 equal to 6 minus 3. Since a, b and c are collinear, so area of triangle will be 0. What is the formula of the area of triangle? Equal to 1 by 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. ओके, नाउ तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो मेरा 0 हो गया, तो 1 बाई 2 x1 कितना 2 y2 माइनस y3 तो k माइनस माइनस 3 प्लस x2 4 y3 माइनस y1 तो -3 प्लस x3 6 y1 माइनस y2 तो 3 माइनस k। ओके, तो जब ये 0 है तो 1 बाई 2 को इधर ले आएंगे तब भी 0 रहेगा, तो 0 इक्वल टू ट्वाइस इंटू k प्लस 3 प्लस 4 इंटू माइनस 6 प्लस 6 3 माइनस k, तो जस्ट सॉल्व इट 2k प्लस 6 माइनस 24 प्लस 18 माइनस 6। ओके, तो k को एक साथ ले लो और इनको अलग, 18 प्लस 6 24 और माइनस 24 4 माइनस 24 दैट विल बी 0, तो 0 इक्वल टू माइनस 4k क्योंकि 2k माइनस 6k दैट विल माइनस 4k प्लस इन दोनों को प्लस करो 24 माइनस 24 so that will be 0. It means minus 4k equal to 0. It implies k equal to 0. So what is the value of k? It will be a 0 for the collinear point. Okay, so these type of questions will be in the exercise. And if you know the vertex of any quadrilateral, next suppose you have a quadrilateral, anything a, b, c and d, and you know the points x1 y1 x2 y2 x3 y3 and x4 y4. Okay, you know the point. So we know that in any quadrilateral we have two triangles. If we draw this line, एक डायगोनल को अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो वो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है, तो दिस इज योर ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2। तो इजीली हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इट मीन्स आपको क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल A B C D, you have to find out area of triangle। कौन सा ट्रायंगल? पहले वाला ABD, इसका ट्रायंगल इसका निकालो ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? सेकंड वाला BCD। ओके, तो अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकल आता है, क्योंकि यूजिंग ट्रायंगल फॉर्मूला दोनों को प्लस कर दो तो आपको किसका एरिया मिल जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। ओके, so this is all about your area of triangle. Okay, now same thing, we will do the mapping of exercise 7.3. Okay, so which question can we do using which example? So I will give the numbering of the example, example number 1, and that will be your 2, 3 and 4. Okay, so in the exercise, if you following the NCERT book, so first question कहता है find the area of a triangle whose vertex are, so vertex given है, so you can do using example number 1, question number 1 easily. Okay, and second is in each of the following find the value of k for which the points are collinear. So you can see the for the value of k, this example, example number 3. So सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 को हम किससे करेंगे?
एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह. ओके, एग्जाम्पल नंबर 3. ओके, एग्जाम्पल नंबर 3. नाउ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ. Question number 3, find the area of triangle formed by the joining the midpoints of the sides of a triangle whose vertex 0, -1, 2, 1, 0, 3. Find the ratio of the area of triangle given triangle. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को. ये आपके पास एक ट्रायंगल है. क्वेश्चन नंबर 3 है ए, बी एंड सी. और आपको क्या है, उस ट्रायंगल के पॉइंट्स आपके पास. ओके, क्या क्या है? 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3. बट आपको जो फाइंड आउट करना है, इसके जो मिड पॉइंट है ई, इसका मिड पॉइंट एफ, इसका मिड पॉइंट जी. आपको निकालना है इसका एरिया. इसका एरिया निकालना है. अगर इसका एरिया निकालना है तो आपको ई के कोऑर्डिनेट, एफ के कोऑर्डिनेट और जी के कोऑर्डिनेट चाहिए. तो दिस इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड जी मिड पॉइंट ऑफ बी सी. तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आप इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लोगे. ये तीनों, जब तीनों कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे तो यूजिंग ट्रायंगल एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मूला you can easily find out the area of this triangle. Okay, so you can try. Now question number 4 में अगर हम देखें, कहता है find the area of the quadrilateral whose vertex are. So this is just we have discussed about this example number 4 how to do it. So you can do question number 4 using example number 4. Okay, and you can, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको जरा 2-3 बार ध्यान से सुनो, then you can do easily. Okay, now क्वेश्चन नंबर 5 को मैं जरा थोड़ा सा हिंट दे दूं आप लोगों को. वो कह रहा है कि द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरियाज, वेरीफाई द रिजल्ट. ओके, जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि अगर मैं किसी ट्रायंगल का मीडियन अगर मैं ड्रॉ करूं तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ओके, दो इक्वल पार्ट्स. तो ये हमें वेरीफाई करना है. तो कैसे करें? तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है. मीडियन क्या है कि अगर अगर ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है और ए, बी और सी, और मैं इस लाइन बी सी के मिड पॉइंट को अगर मैं ए से ज्वाइन कर देता हूँ, सपोज दिस इज योर पी. पी को मैंने ए से ज्वाइन कर दिया और पी क्या है मेरा, इसका मिड पॉइंट है. देन इट इज कॉल्ड मीडियन. इट मीन्स द मिड पॉइंट line segment joined by midpoint of any line with the opposite vertex. ओके, उसके सामने वाले वर्टेक्स के साथ अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो उसको मैं मीडियन बोलता हूं. ओके, अगर आपके पास इनके पॉइंट गिवन है, जैसे ए मेरे पास गिवन है 4, -6 और बी जो है मेरे पास है 3, -2 और सी जो है मेरे पास वो है 5, 2. ओके, तो ये तो बहुत ईजी है. कैसे कि आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड. तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? एक है ट्रायंगल ए पी बी और एक है ट्रायंगल ए बी सी, और इन दोनों को मुझे इक्वल प्रूव करना है. ये मुझे प्रूव करना है. तो आपको बेसिकली पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. तो कैसे निकालोगे पी के कोऑर्डिनेट? तो पी क्या है? पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, पी सपोज एक्स वाई है, तो क्या करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2
डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। और x1 y वो क्या है, b और c है। तो अगर हम देखें इसको, मैं चलो बता देता हूँ, 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 एंड माइनस 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ओके, देखो 3 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 2, तो देखेंगे आपको क्या मिल रहा है, 8/2 एंड 0 डिवाइड बाई 2। इट मीन्स 4,0। ये तुम्हारा क्या आ गया, पी के पॉइंट आ गए। जब पी के पॉइंट आपको मिल गए तो आप दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। अगर दोनों ट्रायंगल का एरिया आपका इक्वल आता है, देन यू कैन से इजीली कि मीडियन लाइन ऑलवेज डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट। Okay, so this is all about your coordinate geometry. Okay, how to solve the problems, how to use distance formula, section formula and the area of the triangle. तीन ही फॉर्मूले हैं हमारे पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन द 10th क्लास। ओके, so okay friends, this is all about your coordinate geometry chapter. Okay, if you have any query then you can ask me, okay, or drop any message in the comment box.